Hello students, in the first video we discussed about mountains. Now today we will discuss about plateau. Land part having approximately height of more than 180 meters above the sea level. Wide and flat surface from the top is called plateau. माउंटेन की हाइट थी 900 मीटर्स है ना. नाउ प्लेट्यू है जो उसकी हाइट है 180 मीटर सी लेवल पे. ओके, तो जो प्लेट्यू है वो 100 मीटर सी लेवल के अबोव है. ओके, वाइड है एंड फ्लैट सरफेस है जिसे हम कहेंगे प्लेट्यू. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू. Plateaus can be divided into three parts on the basis of geographical location and structure. So first is intermontane plateau, second is piedmont plateaus and third is continental plateau. First is intermontane plateau. इसका हम अगर डिटेल में हम देखें तो एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज फुल्ली और पार्शियली सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ऑल फोर साइड्स इज नोन एज ए इंटरमोंटेन प्लेट्यू. प्लेट्यू ऑफ तिब्बत एंड प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया आर इट्स एग्जाम्पल्स. स्टूडेंट्स, और साइड्स है जो चारों के चारों साइड्स है जो हाई माउंटेन की रेंजेस जहाँ पे है, ठीक है, वो पार्शियली या फुल्ली चारों साइड माउंटेन ही माउंटेन है एनी पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इंटरमोंटेन प्लेट्यू. तो इंटरमोंटेन प्लेट्यू के बेस्ट दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत एंड प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया. नंबर 2, पिडमोंट प्लेट्यू. Region having straight slope on the one side in the foot of mountain is called piedmont plateau. ठीक है, स्लोप होता है इस टाइप के प्लेट्यू में और वन साइड स्लोप होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं पेंटागोनिया साउथ अमेरिका, फिर पिडमोंट यूएस, मालवा प्लेट्यू इन इंडिया आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पिडमोंट प्लेट्यू. Number 3, continental plateau. An elevated land part due to geological movement or cooling down of magma on a big high land creates continental plateau. स्टूडेंट्स, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है वो एक बहुत बड़ा एक जो लैंड पार्ट है उसमें जो जियोलॉजिकल मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो बड़ा सा जो लैंड पार्ट है वो कूलिंग डाउन होता है. ठीक है, तो कूलिंग डाउन होने के बाद जिस तरह की वो जो लैंड क्रिएट होती है उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. लेविक हाईलैंड प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया, प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील, प्लेट्यू ऑफ अरबिस्तान, स्पेन, ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू. The lavic soil of plateau is fertile and it is very favorable for cotton crop. Precious minerals like iron, manganese and gold are found from the ancient solid rocks of the plateaus. For example, Chota Nagpur plateau of India. Slopes of this plateau are very important for cattle rearing and also useful for tourism and film industry. Next is plain. Level land or flat land at the height of less than 180 meters above the sea level is known as a plain. Okay. Most of plains in the world are formed by alluvial soil deposited by the rivers. Apart from the rivers, some of the plains are also formed by wind, volcano and glaciers. Classification of plains. On the basis of construction, plains can be classified as a coastal plain, second is erosional plain and third is depositional plain. First is coastal plain, उसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल प्लेन.
Such plains are mainly formed near the seashore. When the end of the continental part of the land near seashore is upliftment due to the geological movement. जियोलॉजिकल मूवमेंट होती है, उसकी वजह से कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है वो थोड़ा अप हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर की साइड आ जाता है। और ये कहाँ होता है? ज़्यादातर मेनली फाउंड इन नियर दी seashore. Okay, these plains are formed. Such plains are known as a structural plain. Okay, this type of plains are often found in the coastal region. Plains situated in the southeastern part of the United States of America spreads up to the Gulf of Mexico. It is an example of coastal plain. Erosion which occurs in the bottom of land creates such plains. Plains in the center of Australia is formed in the same manners. ठीक है, देखिए कोस्टल प्लेन है वो जियोलॉजिकल मूवमेंट की वजह से होता है, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो थोड़ा अप हो जाता है। ठीक है, किस एरिया में होता है ये? नियर दी सी शोर। ओके, तो ये जो फॉर्म होता है उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल या तो फिर कोस्टल प्लेन। उसके दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक तो है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे गुल्फ ऑफ मैक्सिको, एंड सेकंड वाला एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों एरिया में प्लेन जो है वो फॉर्म्ड हुए हैं। नाउ सेकंड इज इरोजनल प्लेन। प्रोसेस ऑफ इरोजन गोइज ऑन कंटिन्यूसली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर द लॉन्ग रन ऑफ टाइम। Such plains are formed due to the erosion which occurs in the mountains and plateaus because of natural factors like river, wind and glaciers. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ना कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक इरोजन होता है, ठीक है, कहाँ किस एरिया में होता है ये? जो माउंटेन्स है और प्लेट्यूज है उस एरिया में होता है ये इरोजन, ठीक है। तो जो रिवर है या फिर विंड है या फिर ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, तो उसकी वजह से जो माउंटेन है और जो प्लेट्यूज है उनकी जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और वहाँ पे प्लेन्स बनते जाते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्लेन आर नॉट कम्प्लीटली फ्लैट बट दे आर सीन बिटवीन हिल्स और सॉलिड रॉक्स। अभी जो इस तरह के जो प्लेन्स होते हैं ना वो मतलब कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो हिल्स और सॉलिड रॉक बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके बीच में इस तरह के प्लेन्स दिखने मिलते हैं। प्लेन्स ऑफ कनाडा एंड वेस्टर्न साइबेरिया आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इरोजन। प्लेन्स built by erosions are also called peneplain. Third is depositional plain. This type of plain is formed because of alluvium deposited by the rivers, glaciers, wind, etc. in lakes or seas. जो lakes और seas है उसके अंदर alluvium है वो डिपोजिट होता है, ठीक है, उसमें वह जमा होता जाता है। Such plains are called depositional plain and also called riverine plain. उसके भी दो नाम है, depositional plain and riverine plain. Okay. River plains of Ganga, Yamuna in India, Yunnan plain in North China, Lombardy plain formed by Po River in Italy are the unique examples of alluvial plains. When the plains are formed with the depositional of alluvial in the lakes, then they are called lake fields. Kashmiri Valley is an example of lake field in India. स्टूडेंट्स, जो एल्यूवियल है वो डिपोजिट होता है इन दी लेक, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लेक फील्ड्स। तो कश्मीर के जो वैलीज हैं वो भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। Importance of plains. Places of human habitation and trade commerce are established in the fertile plains. Plains जो है ना उनकी इम्पोर्टेंस जाने तो प्लेन्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। तो उसमें जो फर्टाइल प्लेन्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल है और ट्रेड की एक्टिविटी भी पॉसिबल है, ठीक है। Flat plains have proved more useful for road routes and rail routes. जो फ्लैट प्लेन्स बने हैं वहाँ पे
रोड के रूट्स भी बना सकते हैं और रेल के रूट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। Cities having dense population are situated in the plains. Fertile land is more useful for farm production. Farm produce supplies raw material for the industries. फर्टाइल प्लेन है, यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल है, ट्रेड एक्टिविटी भी पॉसिबल है, तो वहाँ पे फार्म प्रोडक्शन भी हो सकता है। तो फार्म की जो प्रोडक्शन है वो सप्लाई होती है एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को। बे यूजुअली अ पार्ट ऑफ एन ओशियंस वाटर इज कॉल्ड बे। बे का मीनिंग है जो ओशियंस का जो वाटर का पार्ट है ना उसको बे कहेंगे, ठीक है। They take shapes like huge and wide lake surrounded by the land. The bays can be large and small in size. Bay of Bengal is in India is the best example of it. तो जो बे है वो लैंड एरिया है, वहाँ पे सराउंडेड, वहाँ पे बनी हुई होती है और उसका एक पर्टिकुलर शेप भी होता है, वो ह्यूज और वाइड लेक के फॉर्म में होती है, ठीक है, सराउंडेड बाय द लैंड एरिया। नेक्स्ट इज गुल्फ। व्हेन वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम 3 साइड्स इट इज कॉल्ड गुल्फ। जब वाटर एरिया है वो लैंड एरिया के 3 साइड में, ठीक है, वाटर एरिया लैंड एरिया के 3 साइड में हो जाता है, सराउंडेड उसको कवर कर लेता है, तो उसे हम कहेंगे गुल्फ। Gulf of Khambat and Gulf of Kutch are the best example of it. Next is cape. Cape is a perpendicular end of land that extends into the water body. It also can be known as a sea line. स्टूडेंट्स जो केप होते हैं ना उसका जो एंड होता है वो परपेंडिकुलर शेप में होता है। परपेंडिकुलर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे हम ABCD इंग्लिश में टी लिखते हैं उसका उल्टा, ठीक है, उल्टा टी वो परपेंडिकुलर शेप में होता है। तो जो वाटर बॉडी से जो बना होता है परपेंडिकुलर उसका एंड, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कैप, उसको हम सी लाइन, उसका दूसरा नाम सी लाइन भी हम उसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्याकुमारी इन इंडिया एंड केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका। Next is island. A piece of land that is surrounded by water from all 4 sides is known as an island. Island मतलब जो लैंड एरिया जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है, for all side it is known as a island. For example लक्षद्वीप island, अंडमान निकोबार island, शंखोद्वार means बेट द्वारका, Pirambet and Shialbet. Okay. Next is valley. Low-lying region among the mountain ranges at the time of formation of fold mountains and block mountains. Erosion take place due to flowing of rivers or glaciers. जो rivers और जो glaciers है वो कंटिन्यू फ्लो होते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे इरोजन होता है। तो जब जो फोल्ड माउंटेन और जो ब्लॉक माउंटेन जो है वो फॉर्म होते हैं, तो उस टाइम पे एज ए रिजल्ट क्या होता है, वैलीज आर क्रिएटेड। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कश्मीरी वैली। नेक्स्ट इज स्ट्रेट। अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइन 2 लार्जर वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट। जो सी है उसे सी का नेरो पॉइंट, ठीक है, जो नेरो पीस है वो वाटर एरिया, जो लार्ज वाटर एरिया है वैसे वाले से वो जॉइंट हो जाता है, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल पल्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट इज isthmus. A narrow piece of land which separates 2 water areas is called isthmus. For example Panama between North and South America. स्टूडेंट्स स्ट्रेट और isthmus में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ठीक है। क्या डिफरेंस है इनमें, जो स्ट्रेट से वो जो सी है उसका जो नैरो पीस है वो लार्ज एरिया को ज्वाइन होता है,
जबकि जो इसमिस है वो जो टू वाटर बॉडीज होती हैं उसको वो सेपरेट करता है, ठीक है। नेरो पीस ऑफ लैंड और वहाँ पे आएगा नेरो पीस ऑफ सी, ठीक है। स्ट्रेट में होगा कि सी का नेरो पीस जो लार्ज टू वाटर बॉडीज है उसके साथ ज्वाइन हो जाता है, और इसमिस में आएगा लार्ज पीस ऑफ लैंड जो है टू वाटर बॉडी को सेपरेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इज पेनिनसुला, a piece of land which is surrounded by sea from three sides and connect with land on one is called peninsula. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि पीस लैंड का एक पीस है जिसकी थ्री साइड सी है, ठीक है, वाटर एरिया से है, और जो वन साइड है वो कनेक्ट होता है लैंड एरिया से, मीन्स तीन साइड पानी और वन साइड लैंड, जिसको हम कहेंगे पेनिनसुला। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है साउथ इंडिया एंड सौराष्ट्र।